Overthinking is one of the most common problems we face every single day in our lives. हम हर चीज के बारे में इतना ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, चाहे वो हमारी किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी फीलिंग्स हर्ट होना हो, या ये सोचना हो कि कल इवेंट पे क्या पहनना है। ओवरथिंकिंग हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, नहीं? Hi, I'm Shagun and welcome back to the Soul Seasons, where we try to solve our daily life problems from psychological and scientific perspectives. And today I'm going to talk about how to stop overthinking. I would request you all to grab a pen and paper to note down every single point I am going to tell you in this video, because my videos are mostly psychological research based. It is going to be very difficult for you to remember everything after you complete the video. Point number 1. Overthinking is not going to solve your problems. Basically जब हम overthinking कर रहे होते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय उस प्रॉब्लम को बार बार रिपीट करते रहते हैं, एंड इट मेक्स अ लूप जो कभी खत्म नहीं होता है और हम किसी सॉल्यूशन पे पहुंच ही नहीं पाते हैं. एवरी टाइम यू नोटिस योरसेल्फ स्टक इन दिस लूप, प्लीज आस्क योरसेल्फ, इज इट सॉल्विंग एनीथिंग और एम आई जस्ट ruminating? Rumination basically means a cycle of negative thinking which never stops until you take a step back. So it is very important for you to interrupt yourself while you are overthinking, because if you think that overthinking something will solve your problems and you will find an answer to or a solution to your problems, it is never going to happen. Instead, what you should do is take a 5-minute action, because action interrupts that loop. Point number 2, name the thought technique. So this technique is most commonly used in the cognitive behavioral therapy. जब हम अपने thoughts को name करते हैं तो हम automatically अपने thoughts से बाहर आ जाते हैं. Basically जब हम अपने thoughts को name करना start करते हैं, हम उनसे aware हो जाते हैं और हमारा thought pattern बहुत clearly visible हो जाता है. Whenever you find yourself worrying about something, और जब आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे होते हो, जब आप किसी चीज के बारे में बहुत टेंशन ले रहे होते हो, all you have to do is to say, I am worrying, I am getting anxious, I am catastrophizing, and whatever you are doing in that thought or whatever you are overthinking, just name it. Over time you will get in the habit of it. Every time you name the thought, you will get out of that zone instantly. According to some studies, what happens when you label your thought is that it creates a psychological distance. This technique basically reduces the activity in your amygdala, which is mostly important for your overthinking part. ये टेक्निक ओवर टाइम तुम्हारी थॉट पैटर्न्स को तुम्हें समझने में हेल्प करेगी और आप अपने मेंटल पैटर्न्स को चेंज कर पाओगे. पॉइंट नंबर 3, शेड्यूल्ड वरी टाइम. अब ये थोड़ा सा सिली लगेगा सुनने में, बट ये बहुत इफेक्टिव है, बिकॉज स्टडीज ऑल्सो शो दैट प्लान्ड वरी टाइम रिड्यूसेस योर कॉन्स्टेंट रूमिनेशन. बेसिकली क्या होता है कि जब आप एक टाइम फिक्स कर लेते हो अपने थॉट्स के लिए, अपनी ओवर थिंकिंग के लिए, और जो भी चीज के लिए आपको टेंशन लेनी होती है, उस चीज को फिक्स कर लो कि मैं इस टाइम पे ये सब चीजें सोचूंगा. और दिन में जब भी आपको ऐसे थॉट्स आते हैं तो आपको अपने आप को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करना है कि ये चीज मैं उस टाइम पे सोचूंगा. सो व्हाट यू नीड टू डू इज सेट अ टाइम फॉर योर वरी टाइम फॉर 15 minutes daily. Is write down everything that comes to your mind, everything that you are worrying about, and जो भी चीज आपको परेशान कर रही है उस सब चीज को आपको एक जगह पे लिखना है. And let's say you have decided to write it down or think about it at 7 p.m. Every time you get in that loop, all you have to do is to remind yourself that I am going to write about it and think about it at 7 p.m. and keep postponing until you get to that time. This technique sounds quite silly, but I have used it myself and I can assure you that you will find positive results after doing this for at least 15 days. Point number 4, move your body. Overthinking is not more than a mental energy which is trapped inside your body. It is a mental energy without physical release. When you exercise and when you move your body in any way that you like, what happens is that stress or all that negative energy, whatever is trapped inside you, release outside. Some study shows that exercising reduces overthinking by activating your prefrontal cortex and lowering your cortisol levels. All you need to do is to move your body in some way or the other. 10-minute walk, stretching, breathing exercise also helps to release that emotions, that energy from inside you. ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है और ये कोई न्यू टेक्निक भी नहीं है. एक्सरसाइजिंग के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो रखी है जो कि आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो.
और एक्सरसाइजिंग के इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं विच यू कैन सी इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। पॉइंट नंबर 5, 90 seconds emotional rule. Neuroscientist Jill Ball Taylor found that chemical life of an emotion lasts about 90 seconds. उसके बाद तुम्हारे थॉट्स उस इमोशन को अलाइव रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो इमोशंस तुम फील करते हो लाइक सैडनेस, एंजाइटी और एनी नेगेटिव इमोशन और मे बी द पॉजिटिव वंस टू, दे लास्ट फॉर 90 seconds ओनली। और उसके बाद हम खुद उस चीज के बारे में सोच सोच के उस इमोशन को अलाइव रखते हैं। हम जिस भी चीज के बारे में ओवर थिंक करते हैं वो हमारे इमोशंस को कहीं ना कहीं हमारे अंदर दोबारा अलाइव कर देती है, जिस चीज की हमें नीड भी नहीं होती है। सो व्हेन अ थॉट ट्रिगर एनी इमोशन, ऑल यू हैव टू डू इज टू टेक अ पॉज देयर एंड टेक अ डीप ब्रेथ। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज टू पास द थॉट विदाउट ओवर थिंकिंग इट। ये चीज तुम्हें अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि हम जो भी इमोशन फील करते हैं किसी चीज के हो जाने के बाद, वो हम खुद कर रहे होते हैं। वो इमोशन हम खुद डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर बाय ओवर थिंकिंग इट एंड बाय रिपीटिंग दैट थॉट पैटर्न्स इनसाइड अस। दिस इज ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल रेगुलेशन। हो सकता है कि तुम अभी इतने अच्छे से अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते होंगे, पर ये चीज को समझो कि अगर तुम इमोशंस को वो थॉट्स फीड करते रहोगे, अगर एक इमोशन आप फील कर रहे हो और उसमें और 3-4 थॉट्स ऐड करते जा रहे हो, तो इट इज गोइंग टू मेक योर सिचुएशन वर्स एंड वी डोंट वांट टू मेक इट वर्स, राइट? वी वांट टू गेट आउट ऑफ दैट लूप, वी वांट टू एंड दैट इमोशन राइट देन एंड देयर। Would be hard for you for the first 15 or 30 days, but if you commit to yourself that I will change this state and I will not feel this emotion for more than 90 seconds, then your game is going to change completely. Point number 6, brain dump. Brain dump में हम basically हर वो चीज लिख लेते हैं जो हमारे अंदर चल रही होती है and you have to let it flow automatically. According to some studies, writing moves your thoughts from working memory to external storage. You have to take out 5 minutes from your daily routine to write things down, whatever is making you anxious or whatever is worrying you in some way or the other. All you have to do is to empty your mind. आप चाहो तो एक नोटबुक अलग से भी रख सकते हो जिसमें आप ब्रेन डंप करो। जब आप इस प्रैक्टिस को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो, then you start noticing a certain mindfulness effect in yourself. You start getting aware about your thoughts. You start actually solving your problems rather than just thinking about it on repeat. और आपका माइंड भी आपको सपोर्ट करता है अपने थॉट्स से अवेयर रहने में। राइटिंग डाउन योर थॉट्स मेक्स यू मोर कॉन्शियस अबाउट योरसेल्फ, योर लाइफ एंड द थॉट पैटर्न्स दैट यू एंगेज इन। पॉइंट नंबर 7, लिमिट डिसीजन लूप्स। आपने नोटिस किया ही होगा ये कि जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जब आपको कोई डिसीजन लेना होता है, तो आप उस डिसीजन लेने के प्रोसेस में ही स्टक हो जाते हो। आप एक लूप स्टार्ट कर देते हो, उस डिसीजन को कभी ले ही नहीं पाते हो एंड ओवर टाइम इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, वरी एंड व्हाट नॉट। ये चीज हमारे साथ जब होती है जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं किसी चीज को डिसाइड करने के लिए। फॉर अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल, जब आप कोई ड्रेस चूज करते हो या फिर कहीं शॉपिंग पे जाते हो, तो आप इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो इतने सारे ऑप्शंस देख के। जितना ज्यादा आपके पास किसी चीज के लिए भी ऑप्शंस होते हैं, आप उतना ही ज्यादा उस डिसीजन लूप में स्टक होते चले जाते हो एंड दिस ट्रिगर्स ओवरथिंकिंग। साइकोलॉजिस्ट बैरी शॉर्ट्स कॉल्स दिस पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आपको डिसीजन लेने के लिए एक डेडलाइन सेट करनी पड़ेगी। यू हैव टू टेल योरसेल्फ दैट आई मस्ट come to a conclusion or take a decision before this time, and you don't need to be get into perfectionism to take a decision. Choose a good enough option and stick to it. कई बार हमें लगता है कि ये चूज कर लेता तो ज्यादा अच्छा होता, अगर वो चूज कर लेता तो और ज्यादा बेटर हो सकती थी मेरी लाइफ, पर ऐसा नहीं होता है। आप कुछ भी चूज करो, आप उस चीज के बारे में ओवरथिंक करोगे ही करोगे, क्योंकि आपके पास जब इतने सारे ऑप्शंस होंगे, आप कुछ भी चूज करोगे तो आपको लगेगा ही कि काश मैं वो चूज कर लेता। एंड इट इज very important that you accept what you choose and stick to that decision. Don't regret it later. मैंने एक बार ये चीज पढ़ी थी कि कोई भी डिसीजन अच्छा या बुरा नहीं होता है। आप जो भी डिसीजन ले लेते हो अल्टीमेटली इट गेट्स इन योर फेवर। और कई बार हम जब बुरे डिसीजंस भी ले लेते हैं तो हम उस चीज से कुछ सीखते ही हैं। कोई भी डिसीजन बैड नहीं होता, कोई भी डिसीजन बुरा नहीं होता। तो जो भी आप डिसीजन लो उस चीज को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 8, ट्रेन योर अटेंशन। आपको पता है कि ओवर थिंकिंग
थिंकिंग एक थिंकिंग प्रॉब्लम है ही नहीं, इट इज एक्चुअली अ अटेंशन प्रॉब्लम। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि आपको माइंडफुल रहना चाहिए, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, एंड वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हो, आपका दिमाग कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, आइदर पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में। सो व्हेन यू फिक्स योर अटेंशन, यू ऑटोमेटिकली गेट आउट ऑफ दैट थिंकिंग लूप। यू नीड टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस टू strengthen your ability and redirect your focus. Research shows that 5 to 10 minutes of mindfulness practice reduces so much of your mind activity. So meditate करो, mindfulness practice करो और अपने emotions और thoughts से aware रहने की कोशिश करो। और मैं इस चीज को personally believe करती हूँ कि आप जिस चीज को भी fix करना चाहते हो, all you have to do is to start noticing it more. And there is a very famous quote, where focus goes, energy flows. तो जिस भी चीज पे आप फोकस करोगे, जिस भी चीज को आप ज्यादा नोटिस करोगे, ऑटोमेटिकली वो चीज अपने आप ठीक होने लग जाएगी। एंड ओवर थिंकिंग मोस्टली नीड्स योर अवेयरनेस। जब आप ज्यादा अवेयर रहोगे, अपने आप को ज्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रखने की कोशिश करोगे, यू विल स्लोली गेट इनटू दैट पैटर्न ऑफ बीइंग प्रेजेंट। सो द नेक्स्ट टाइम यू नोटिस योरसेल्फ ओवर थिंकिंग, जस्ट फॉलो these steps and make sure to share this video with your best friends or people around you who you think overthink a lot. And please comment down below so that I also feel motivated to create more such videos for you. This is Shagun from Soul Seasons, reminding you that overthinking is not a thinking problem, it is an attention problem.